کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ صوبائی دارالحکومت میں سورج کے جلوے، گرمی کی شدت برقرار، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں بارش متوقع، بارش کے باعث ہبس میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 79% تک جا پہنچا۔ مزید موسم کی کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ آج صبح سویرے ہی سورج جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو وہیں پر محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی جو ہے وہ بارشوں کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے، جس کے بعد ہبس میں اضافے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دن بھر جو ہے وہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ اگر بات کر لیجیے کچھ درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم از کم 27 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ اس وقت تقریباً 80% تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت لاہور میں جو ہے وہ 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ مونسون کی بارشوں کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اور آج بھی جو ہے وہ دن بھر وقفے کے ساتھ بارش برسنے کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے، جس کے بعد جو ہبس میں اضافہ ہے وہ مزید ہوتا چلا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ مہنگائی کی کچھ بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ مہنگائی مافیا کا راج برقرار، شہری سستی اشیاء خورونوش کو ترس گئی۔ برائلر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار، مارکیٹ میں برائلر گوشت 14 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 417 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 244 روپے برقرار۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7200 روپے میں دستیاب۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا برائلر کے ریٹس کے حوالے سے۔ جی بالکل، برائلر کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ہی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں زندہ برائلر کی سپلائی جو ہے وہ بلیک میں کی جا رہی ہے اور اوور چارجنگ کی جا رہی ہے۔ سرکاری ریٹ جو آج جاری کی گئی ہے پولٹری مصنوعات کی، اس میں برائلر گوشت کی قیمت میں 14 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ برائلر گوشت 417 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 10 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 260 روپے، ہول سیل زندہ برائلر 274، جبکہ پرچون زندہ برائلر جو ہے 288 روپے مقرر کیا گیا۔ تاہم جو سپلائر ہیں ان کی جانب سے زندہ برائلر کی سپلائی شہر کی دکانوں پر 288 کے برعکس 300 سے 310 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے، جس کے باعث دکانداروں کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر برائلر کی بلیک مارکیٹنگ کا آغاز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مہنگا برائلر جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو فارمی انڈے ان کی قیمتیں 244 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں، اور ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 7200 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ نجی تنظیم کے زیر اہتمام سالانہ گریجویشن تقریب، چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 83 طلبہ طالبات کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب میں رانا مشہود احمد خان کا کہنا تھا، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے بچے رول ماڈل ہیں۔ آپ کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ آپ سب کے اندر چمکتا ہوا پاکستان دیکھتا ہوں۔ ہنر کی بنیاد پر آپ لوگوں کو بہترین معاشی مواقع حاصل ہوں گے۔ میں صرف آپ بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ماڈلز ہیں، رول ماڈلز ہیں اپنی اپنی کمیونٹی کے، اپنے اپنے اداروں کے، اپنے اپنے علاقوں کے، کیونکہ آپ نے یہ حوصلہ کیا کہ آپ ایک ایسا فن اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں جس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگیاں بنا سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ترقی میں پاکستان کی ترقی ہے، آپ کی خوشحالی میں پاکستان کی خوشحالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پی پی ایف جیسے ادارے، ہنر فاؤنڈیشن جیسے ادارے، صاحبان پاکستان جیسے اداروں کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگیاں بنانے میں دن رات کوشاں ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अज़मा बुखारी को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। बोली, अज़मा बुखारी मेरी सुपर वज़ीर हैं। पंजाब हुकूमत और अवामी राब्ते को मजबूत करने में अज़मा बुखारी का किरदार काबिल सताइश है। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन कल्चर, इनको मैं बहुत दिल से शाबाश देना चाहती हूँ। ये भी मेरी सुपर वज़ीर हैं, दिन रात एक करती हैं। जितने मेहनत से, लगन से इन्होंने पंजाब हुकूमत की मुआवनत की है, पंजाब हुकूमत की जो अवाम के साथ कम्युनिकेशन है उसको इन्होंने स्ट्रेंथन किया है। मैं अज़मा आपको दिल की गहराइयों से शाबाश देती हूँ। मखसूस नशस्तों से मुतालिक आइनी बेंच के अक्सरती फैसले के बाद कौमी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में पार्टी पोजीशंस में तब्दीली आ गई। इजाफी मखसूस नशस्तें मिलने से हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली के ऐवान में 2/3 अक्सरियत मिल गई। किस जमात को कितनी इजाफी मखसूस नशस्तें मिलेंगी, जानते हैं। असम्बली की मुअत्तल 77 मखसूस नशस्तें बहाल। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अराकीन की हिमायत मिल गई। कौमी असम्बली में पंजाब से ख्वातीन की 11 और खैबर पख्तूनख्वा से 8 जबकि अकलियत की भी 3 मखसूस नशस्तें बहाल हुई। मुस्लिम लीग नून को 15 और पीपल्स पार्टी को 4 इजाफी नशस्तें मिलेंगी। JUIF के हिस्से में भी 3 इजाफी नशस्तें आएंगी। इस वक्त कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 218 है। मुस्लिम लीग नून इजाफी नशस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125, पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन होंगे। फैसले से कबल कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 218 अराकीन की हिमायत हासिल थी। फैसले से कबल कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 218 अरकान की हिमायत हासिल थी। 336 के बाद में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार हैं। 19 इजाफी नशस्तें मिलने से हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अरकान के। पंजाब असम्बली में मजीद 27 इजाफी नशस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी। इनमें ख्वातीन की 24 और अकलियतों की 3 नशस्तें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून को 23, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 इजाफी नशस्त मिलेगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 इजाफी नशस्त मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख्वातीन की 21 और अकलियत की 4 मखसूस नशस्तें बहाल हुई हैं, जिसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIF को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 मखसूस नशस्त मिलेगी। सूबे का 30 साला गर्दिशी कर्जा 1.5 बरस में 0 हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, तारीख का सबसे बड़ा और टैक्स फ्री बजट पेश किया है। वज़ीर आला ने आइंदा माली साल के मंसूबों बारे ऐवान को एतमाद में लिया। अपोजिशन ने ऐवान में भरपूर एहतजाज किया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज ने शिरकत की और अपने तवील खिताब के दौरान माली साल 2025-26 के बजट को तारीखी करार दिया। सूबे में जारी और आइंदा मनसूबों बारे भी ऐवान को आगाह किया गया। दौरान खिताब अपोजिशन शोर शराबा और एहतजाज मरीम नवाज ने कहा कि बजट में ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट के लिए 150 अरब रुपए की रकम रखी गई है। 27 इलेक्ट्रिक बसों से आगाज किया। 1500 मजीद इलेक्ट्रिक बसें अगले 6 माह में फ्राटे भर्ती नजर आएंगी। 240 बसें छोटे शहरों को दी जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए हमने 150 अरब की रिकॉर्ड रकम रखी है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज कर दिया गया है। 27 बसों से लाहौर में हमने आगाज किया और 1500 बसेस इंशाअल्लाह ताला अगले 6 महीने में आपको पूरे पंजाब में फर्राटे भरती हुई नजर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अगले 1.5 साल में गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस का आगाज करेंगे। लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेल चला रहे हैं। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन भी चलेगी। पंजाब की पहली एयरलाइन की फ्लाइट दिसंबर से पहले टेक ऑफ करेगी। अगले 1.5 साल में गुजरांवाला मेट्रो और फैसलाबाद मेट्रो हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मेट्रो बस से एक स्टेप आगे है, ऑटोनमस रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसको ART कहते हैं। ये अपनी नौयत का पाकिस्तान का पहला मंसूबा है जनाब स्पीकर। इसी तरह जनाब स्पीकर लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेल जो लाहौर से आपको 2.25 घंटे में पिंडी पहुंचाएगी इंशाअल्लाह ताला। और पहली फ्लाइट इस साल 2025 में इंशाअल्लाह दिसंबर से पहले
इंशाअल्लाह ताला टेक ऑफ करेगी एयर पंजाब की। वज़ीर आला मरियम नवाज के मुताबिक इस साल 60 टूरिज्म साइट्स पर भी काम शुरू हो जाएगा। 40 अरब रुपए से 13.5 लाख अफराद को राशन कार्ड दिया जाएगा। 30 अरब रुपए की फाइनेंसिंग स्कीम भी शुरू की जाएगी। टूरिज्म और आर्कियोलॉजी में मैग्निफिसेंट पंजाब विजन के तहत 60 अरब रुपए की तारीखी बजट से हम 160 पोटेंशियल टूरिस्ट साइट्स को हमने मैपिंग ख़त्म कर ली है और इंशाल्लाह हड़प्पा, टैक्सला, मरी और जनूबी पंजाब के मशहूर सियाती मकाम फोर्ट मनरो पर खसूसी तवज्जो देने के साथ साथ 60 टूरिज्म साइट्स पे इस साल काम शुरू हो जाए। 40 अरब रुपए से 13.5 लाख खानदानों को मरियम नवाज राशन कार्ड महाना 3,000 रुपये जो है उसका 1 जुलाई से आगाज हो रहा है। 13 लाख फैमिलीज को 13.5 लाख फैमिलीज को ये राशन कार्ड दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ को 55,000 से 75,000 रुपए तक ले जाने का ऐलान किया और बताया कि पहला सरकारी डायग्नोस्टिक सेंटर भी जल्द शुरू करेंगे। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ऐवान में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बजट इजलास के दौरान दोबारा शोर शराबा हुआ तो कायदा 233 के तहत कार्रवाई होगी। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली की मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ऐवान के तकद्दुस, अरकान के रवैये और कानून साजी के अमल पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ऐवान में हर रुकन को बोलने का मौका देता रहा हूँ, लेकिन ऐवान का तकद्दुस पामाल करने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। बजट तकरीर एक हसास और संजीदा मामला है। इस दौरान हंगामा आराई सिर्फ जमहूरी अमल को नुकसान पहुँचाती है। कोई भी मेंबर जो हक की नुमाइंदगी अदा करते हैं तो मैं उनको जितना मौका हो सकता है भरपूर अंदाज से देता हूँ। बजट की तकरीर कितनी लाजमी चीज़ है, एक कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं इन हाउसेस की तौकीर, जमहूरियत का बुरा, इजहार हक के नाम पर हुल्लड़बाजी, इन सब चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और इस जिम्मेदारी को मैं बड़े भरपूर अंदाज से अदा करूँगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि ऐवान का ज़ाबिता अखलाक इसी ऐवान ने खुद तय किया है, इस पर सबकी यकसा अमलदारी लाजिम है। दोबारा ऐवान में हंगामा आराई की सूरत में कायदा 223 के तहत कार्रवाई करूँगा। ये जो हाउस है ये एक ज़ाब्ते का पाबंद है और वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस हाउस ने खुद अपने लिए तयन किए हैं। अगर अब कोई मेंबर इस तरह के डिसऑर्डरली कंडक्ट में जाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इन रूल्स को हासिल है उस आइन का ये तकाजा है कि मैं इसका ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई हार्श इकदाम भी मुझे करना पड़ा तो आई विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम डूइंग इट। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बताया कि असम्बली से मिलने वाली मराहत बच्चों को इंटर्नशिप करवाने के लिए वक़फ़ करने का हुक्म दे चुका हूँ। मेरी सारी मराहत असम्बली में इंटर्नशिप करने वाले बच्चों की तनख्वाहों के लिए इस्तेमाल होगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर में सारा दिन कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश होती रही। कुछ इलाके बाराने रहमत से महरूम भी रहे। औसतन 8.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में हब्स की कैफियत भी बरकरार। और में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश, हब्स की कैफियत भी बरकरार है। हवा में नमी ज्यादा होने के बायस शहरी पसीने से शराबूर और गर्मी से निढाल। वासा ने लाहौर में होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक जेल रोड पर 17, गुलबर्ग में 8, लक्ष्मी चौक में 18 और पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 31 मिलीमीटर बारिश बरसी। दर्जा हरारत भी 26 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। बारिश के सबब बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर रहा। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप, दर्जनों ट्रांसफार्मर जलने से मुतअद्दिद इलाकों में 24 निज़ाम आने की पेशगोई की गई है। नया निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। PDMA का कहना है कि शहरी आसमानी बिजली, आंधी और तूफान से बचने के लिए महफूज मुकामात पर रहें। रवां बरस मानसून बारिशें 25% ज्यादा होने की पेशगोई की गई है। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में मानसून की पहली ही बारिश ने वासा की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। मॉडल टाउन लिंक रोड पर जमीन धंस गई और सड़क में खतरनाक शगाफ पड़ गया। शगाफ की वजह बोसीदा सीवरेज लाइन बताई जा रही है। वासा ने शगाफ के मकाम पर मिट्टी डालकर मामला ही दबा दिया। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। लाहौर में मॉनसून की पहली बारिश और मॉडल टाउन लिंक रोड पर जमीन ने मुंह खोल दिया। सीवरेज लाइन टूटने से सड़क पर बड़ा खतरनाक गड्ढा पड़ गया। बोसीदा सीवरेज लाइन फटी तो सड़क का सीना चाक हो गया, मगर वासा ने हस्बे रिवायत सिर्फ मट्टी पाओ पॉलिसी पर अमल किया। ना कोई हिफाजती बैरियर, ना किसी किस्म की वार्निंग, ना ही फौरी मुरम्मत। शिकाफ को मट्टी डालकर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ज़राए का दावा है कि वासा की सालाना तरक्याती समरी में इस खस्ता हाल लाइन का जिक्र ही मौजूद नहीं था। बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का अहम मामला एक बार फिर फाइलों में दफन कर दिया गया। शगाफ की मुरम्मत न होने से मॉडल टाउन लिंक रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता बरस भी मानसून के दौरान लाहौर की कई शाहराहों पर सीवरेज लाइनें फटने से शगाफ पड़े थे, लेकिन इनसे कोई सबक हासिल नहीं किया गया। जिन जगहों पर खतरा खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज। मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस के अलावा कोई नई इख्तरा नहीं होगी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को होगा। यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। यकम से 10 मुहर्रम तक पंजाब भर में मंजूर शुदा रूट्स के अलावा जुलूस नहीं निकाले जा सकते। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर वाक़ मकानात और दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चे तामीर करने की ममानत होगी। जुलूस के रास्तों में मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर भी पाबंदी। यकम से 10 मुहर्रम तक अवामी मकामात पर असलहा और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि जुलूस के दौरान रास्ते में वाक़े इमारतों की छतों या दुकानों के थड़ों पर शहरियों की बतौर तमाशाई मौजूद होने पर भी पाबंदी होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का पीडीसी का दौरा। सीईओ लेस्को ने मुहर्रमुल हराम और मानसून के दौरान सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फराहमी के इकदामात का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट ने लेस्को हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम का दौरा किया। लेस्को हुकाम ने चीफ एग्जीक्यूटिव को मानसून बारिशों के दौरान बिजली बहाली के ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि लेस्को रीजन में बिजली की डिमांड 3,828 मेगावाट जबकि सप्लाई 3,600 मेगावाट है। सीईओ लेस्को का कहना था कि जब तक आखिरी सारिफ की बिजली बहाल ना हो जाए सूरत हाल को खुद मॉनिटर करूंगा। मानसून सीजन में लेस्को टीमें 24 घंटे सार्फिन की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगी। मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों के लिए बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी परेशान। मार्केट में मेथी 160, करेले 120, आलू 110, बैंगन 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 600, पपीता 550, फालसा 350, आम सिंदड़ी 270 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं, सब्जियों के मजमूई तौर पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज आज 5 रुपये महंगा करके 45 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये दर्जावल के प्याज की कीमत है। तमाम मार्केट में दर्जावल का प्याज 70 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में टमाटर जो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, आलू 5 रुपये इजाफे के बाद 75 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 5 रुपये महंगे करके 85 रुपये सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 130 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह बंद गोभी 5 रुपये महंगी करके 70 रुपये मुकर्रर की गई है, फरोख्त 100 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है, मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना 5 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है, मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह घिया कद्दू जो है 10 रुपये महंगा करके 110 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी रेट में बज़ाहिर किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन तमाम फल जो हैं
वो सरकारी रिलीजों के बरक्स महंगे दामों मार्केटों में फरोख्त हो रहे हैं। सेब काला कुल्लू 440 रुपए सरकारी रिलीज में बरकरार रखा गया है। मार्केट में 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 200 के बरक्स 230 से 240 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 270 के बरक्स 330 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और आम सिमरी 225 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 270 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खुबानी 250 के बरक्स 340 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। तमाम फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स मार्केटों में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर की पहली मास ट्रांजिट येलो लाइन का इब्तदाई डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलने वाली इस बस रूट का बस स्टॉप, लेन, सबवे और पुलों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। लाहौर में एक और जदीद ट्रांसपोर्ट मंसूबे की झलक देखिए ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। लाहौर में मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से एक और बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने येलो लाइन बस मंसूबे का इब्तदाई डिजाइन फाइनल कर लिया। येलो लाइन मंसूबा मरियम नवाज हुकूमत के मास ट्रांजिट विजन का पहला अमली खाका है, जो कनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक तामीर किया जाएगा। जराये के मुताबिक बसों की खसूसी लेन सड़क के इंतहाई दाईं तरफ मुख्तस की गई है, ताकि आम ट्रैफिक मुतासर न हो और बस सर्विस बिला रुकावट चल सके। बस स्टेशन नहर के दोनों किनारों पर तामीर होंगे। हर स्टेशन तक रसाई के लिए अंडरग्राउंड सबवेज तामीर किए जाएंगे। नहर के ऊपर पुल भी बनाए जाएंगे। कनाल रोड पर एक नया अंडरपास भी तामीर किया जाएगा। हर स्टेशन पर बस बे, इंतजारगाह, मुसाफिरों के बैठने की जगह और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मौजूद होंगे, ताकि शहरियों को सहूलत मुयस्सर हो और आलमी मयार की ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जा सके। लाहौर में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब लाने के इस मंसूबे को आइंदा माली साल में शुरू किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शल इमारतों के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा माफिया से 5 कीमती प्लाट वागुजार करा लिए गए। LDA टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में 86 गैर कानूनी कमर्शल इमलाक सरबे मोहर कर दी। जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में 5 कीमती प्लाट वागुजार करवाए गए। डायरेक्टर हाउसिंग 7 यावर विक ने LDA मलकती प्लाटों को वागुजार करवाया। टीमों ने जौहर टाउन में कई प्लाट सरबे मोहर किए। न्यू मुस्लिम टाउन और लेटन रोड से चबरची चौक तक 31 इमलाक सरबे मोहर की गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मा और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया। तरक्याती मनसूबों के तखमीने और प्लान की इब्तदा में सख्त स्क्रूटनी होगी। तमाम अथॉरिटीज़ के तरक्याती प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले महकमा हाउसिंग में नज़रसानी होगी। प्रोजेक्ट के PC1 की नज़रसानी के लिए खसूसी जायज़ा कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान और PND की गाइडलाइंस के इतलाक को यकीनी बनाएगी। तरक्याती मनसूबों के मयार की सख्त स्क्रूटनी को यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी तमाम काम 7 दिन में मुकम्मल करने की पाबंद होगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि गुंजाइश के मुताबिक प्रोजेक्ट में बेहतरी लाई जाएगी। DGPHA मंसूर अहमद पार्क्स की बेहतरी के लिए फील्ड में मुतहरिक। बाग जीना का दौरा, इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुस्तफ़ा शाद ने बाग के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। पार्क के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी और पार्किंग सिस्टम का जायजा लिया। बाग को सरसब्ज बनाने, खाली जगहों पर फौरी घास लगाने की हिदायत की। मंसूर अहमद रांझा का कहना था कि खुद पार्क के दौरे कर रहा हूं ताकि मजीद बेहतरी यकीनी बनाई जा सके। कोई पार्क नज़रअंदाज नहीं होगा। तमाम पार्क्स के मयार को चेक किया जा रहा है। अहले लाहौर के लिए शहर के तमाम पार्क्स में खुशगवार माहौल और अवामी सहूलियात से मुज़य्यन बनाने के लिए कोशिश हैं। पाक बहरिया रवायती और गैर रवायती ख़तरात से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ कहते हैं, मुस्तकबिल की जंगें जीतने के लिए ज़हीन और टेक्नोलॉजी से लेस अफराती क़ुव्वत की तैयारी नहायत अहम है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 54वें स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया। नेवल चीफ ने खत्ते में बदलती सूरत हाल के तनासुर में पाकिस्तान को दरपेश मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया।
एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि बहर हिंद के खत्ते में ताकत की आलमी कशमकश के सबब मुसलसल तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। रवायती जंगी हिकमत अमली को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। नेवल चीफ ने कोर्स के शुरा की पेशा वाराना मेहनत और लगन को सराहा और कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। और खबर दें कि एफबीआर के नए कानून को लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद कहते हैं महज शक की बिना पर एफआईआर का इंदराज जुल्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने एफबीआर में इस्लाहात की दरख्वास्त करते हैं इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाया जाए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद और नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार ने बिजनेस कम्युनिटी के हमरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 37A कानून से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो चुका। सेल टैक्स अफसरान के इख्तियारात समझ से बाला हैं। नए कानून से सनतें बंद होंगी। एफबीआर अफसरान का रिकॉर्ड हम सबके सामने है, जिसके साथ टैक्स हकाम को एफबीआर को ये पावर दे दी है कि वो शक की बुना पे, अगर किसी बंदे पे भी शक है उसकी बना पे टैक्स पेयर को फ्रॉड के केस में अरेस्ट कर ले। 37AA से फौरी तौर पे उसकी मार्केट वैल्यू, उस बंदे की रिस्पेक्ट वो ज़ीरो हो जाएगी। पावर्स दी गई हैं IR यानी कि इनकम टैक्स और जो सेल टैक्स के जो अफसरान हैं उनको पावर दी गई है कि अगर वो स्मेल भी करते हैं कि यहाँ कोई चीज़ गड़बड़ है तो उस बुनियाद पर FIR काट के बंदे को CFO को और उसके CEO को आप अंदर कर देते हैं उसके ग्रुप लॉ के तहत। नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर चौधरी और साबिक सदर मोहम्मद अली मियां ने कानून AA 37 को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत क्या करना चाह रही है समझ नहीं आ रहा। जो बिजनेस सेक्टर्स नुकसान में जा रहे हैं, हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? क्यों लोग टैक्स नेट में नहीं आते? 37AA जो काला कानून है, इस तरह थोड़ा ही है कि वो बैठे तो सही, चैम्बर्स के साथ बैठे, चलो ट्रेडर्स के साथ नहीं बैठना चाहते ना बैठे, लेकिन हमारे सीनियर्स के साथ, हमारे सदूर के साथ, खाली लाहौर चैम्बर नहीं पूरे लाहौर के चैम्बरों के साथ बैठे। इसी तरह जो सेक्टर्स लॉस में जा रहे हैं उनका कौन जिम्मेदार है? उनकी भी जो उनका जो लॉस है वो भी हमने अपने सर पे उठाना है। किसी भी सूरत हमें 37AA जो कानून है वो नामंजूर है। एक गलत कानून पास हो गया असेंबली से। असेंबली में हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई भी, कोशिश भी की, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब FBR में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ये वादा कर चुके हैं कि पहले टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान एक दीवार खड़ी करेंगे, कोई राब्ता डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ राब्ता नहीं, यहाँ तो आपने उनको हमारे सर के ऊपर बिठा दिया ला के। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तनवीर अहमद शेख, राना निसार, साबिक सदर एपमा बो मोहम्मद बशीर समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने हाथ उठाकर 37AA को मुस्तरद किया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि दुश्मन मुहर्रम में अमन खराब करने की कोशिश कर सकता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। शहर में 21,000 पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे। देखिए मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। लाहौर समेत सूबे भर में मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वो कहते हैं, मकार दुश्मन को हमने बड़े मार्के में शिकस्त दी। इस मुहर्रम की हसासियत गुज़श्ता मुहर्रम से ज्यादा है। दुश्मन मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान खराब करने की कोशिश कर सकता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। 10 मई में जो आपने पोस्ट वॉर हम वो देखते हैं सिनेरियो, उसके अंदर अलर्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंटरनल कोई रिफ्ट ऐसी ना हो। ये वो चैलेंजेस हैं जो इस साल मुहर्रम में हमने देखने हैं। आपस में हमारी यूनिटी हो, तमाम मसाले के एक पेज पे हों, इसके लिए काम हमने ईद से भी पहले शुरू कर दिया, ईद उल अज़हा से। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मजीद कहा कि मुहर्रम के जुलूसों मजालिस पर 3 दर्जाती सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। शहर में 21,000 पुलिस अफसरान और एहलकार मुहर्रमुल हराम में ड्यूटी देंगे। शहर में 3,868 मजालिस होंगी, जिनमें 457 एक कैटेगरी की मजालिस हैं। आशूर मुहर्रम के मौके पर शहर में पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात होंगे। मजालिस की तादाद 3,800
समथिंग है। तो ये 3868 जो मजालिस हैं ये मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ एरियाज़ में होती हैं, तो स्मार्टली हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये हमारी अगर टोटल तादाद जो डिप्लॉय होगी हर मजलिस के ऊपर दैट इज़ 21,000। इसी तरह रेंजर्स और आर्मी की कंपनीज की भी रिक्विजिशन कर दी गई है। DIG ऑपरेशंस लाहौर का मजीद कहना था कि मोबाइल फोन सर्विसेज सिर्फ मरकजी जुलूस के अतराफ में बंद होगी, जबकि मरकजी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमात भी ली जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर।